congratulations after a long gap. क्या कुछ कहना चाहोगे? Yes, the gap was quite long, but I think it's now feeling that it was worth it because I'm good to be. I'm happy to be back with a project like The Whistleblower because it's a it's a story based on real events and very gritty, very real, realistic. The kind of project I wanted to be attached to. So yes, the gap has been long, but trust me, if you watch the show, you'll feel it's worth it. Okay, so since we know about your journey, you have started your career with a reality show, then TV show, and then web, and after Z5 now this one. So what do you have to say when you look back? How do you feel? I feel very happy. I think जो भी journey रही है so far, I'm very grateful for it because I think each and everything has added value to my life and to me as an actor also because in the reality show I was very new. I never thought I'd win it, but I ended up winning it. Then I think as an individual, I felt it was a setback for me when my whatever the show had promised me, it wasn't given to me, which was a film, right? So I moved on to doing TV shows. I was very happy doing that at the time. It felt right. There's a lot I learned from television, and then after doing a show that was really appreciated by the audiences, I think the OTT had that time only taken off with great projects, and as an actor I felt कि मुझे ऐसा कुछ करना है यार. So I felt like taking a break, and I waited, and then another show happened, but I think that show, I don't know how many people are aware of it, but it was also a spin-off of a TV show. So for me, in a full-fledged way, this is the first OTT kind of show that I'm doing. And yeah, I'm sorry, your question was about the journey. I'm very grateful and happy about the journey so far, and looking forward to doing more projects on OTT now. Okay, so what about coming back to television? Can we see you again in daily soap or any reality show if you get a chance? I haven't thought about it. Like I said, I mean, just as an actor, it's been a tough that period of waiting for the right project. It's been quite challenging in its own way because it's not easy to sit back at home and wait for the right one. So उस हिसाब से तो मैं अभी और OTT projects ही करना चाहूँगी. I'm just hoping this leads to another good one, and for now I haven't really thought of doing any reality. Okay, so अगर मैं बात करूँ Whistleblower की, तो what made you to say yes for this script and for this OTT? I remember I was in Chandigarh for my sister's wedding when I got a call for this, and that time, of course, at audition level, you don't ask much about the show. They don't even tell you much about the show. So I thought, ठीक है, test कर लेते हैं. I tested for it, and I think in a week I got a call that you've been shortlisted. This was through Mukesh Chhabra Casting Company, and then I said I want to know more about the project because that was that period for me as an actor where I was waiting to say yes to the right one, to say yes I mean whatever works usme se I wanted to say yes or take up a show that I really wanted to be a part of. When I heard the story, oh my god, I was sold because we've all experienced as viewers and as actors also that ये जो ज़माना है ये content का है, and for at script level this show was sounding so good that I couldn't have said no to it, not at all. Okay, and अगर कैरेक्टर की बात करो तो किस तरीके का किरदार है आपका? What do you have to say? कितनी similarities हैं the character you are playing and the real life Ankita? I play Pragya, who's a final year medical student. Very strong character, I would say. Someone who stands up for everything she feels is right. Someone who stands up for people also she believes in. And ऐसी है कि सबके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है, morally incorrect, she won't support that, even if it's her closest person, say. So ये तो काफ़ी relatable है, but I think courage प्रज्ञा का कुछ next level है. So that was something I had to be convincing at.
Yeah, it's quite relatable in so many terms. The doctory part, of course, I had to work a lot on it because we wanted it to look very convincing. You don't want to show procedures and आपके चेहरे पे ही वो conviction ना दिखे, but we worked hard on it. We've had our workshops with doctors and जो भी हमारे scenes के specific procedures थे वो हमने बहुत अच्छे से सीखे. What is the takeaway you are taking from your character Pragya? That like as a person, to stand up for everything that you believe in. I think it always pays off. And और कुछ ना हो, ज़माना बदले ना बदले, I think आपको नींद अच्छी आती है जब आप कुछ सही के लिए खड़े होते हो. ओके एंड अगर कास्ट की बात करो तो वी हैव सीन लाइक कितने बड़े से बड़े कलाकार है, विद सोनाली देन रवि किशन. सो व्हाट डू यू हैव टू से जब आप इनके साथ काम करते हो, लाइक ऑन सेट या फिर अगर बिहाइंड द सीन्स की बात करो तो कितना अच्छा इक्वेशन था एंड क्या कुछ इनसे सीखने को मिला? व्हाट एडवाइस लाइक दे हैव गिवन यू? Shurma, I was very nervous because it was my first time working with such big actors who've been there for years and done such amazing work. I was nervous plus excited as an actor. Obviously, you look forward to doing scenes with them. It's been a great experience, learning experience. बहुत कुछ सीखा. शायद वो आपको ऐसे नहीं बोलकर नहीं सिखाते, but scene में ही आप कुछ ले लेते हो, like when give and take happens. Abhi bhi, if you must have seen in the interviews also, their words are so like full of wisdom. तो आप सोच सकते हैं कि शूट पे मुझे कितना मज़ा आया होगा और कितना कुछ मैंने सीखा होगा एज एन एक्टर. The best memory you are taking with this? Best memory, one memory. There's a lot. एक तो ये पूरा शो मुझे लगता है 1 साल में ख़त्म हुआ है because of the gaps we've had owing to COVID and second lockdown and the team testing positive for it. तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे memorable moments हैं. But there is one scene when you watch the show, you'll see it. I can't talk much about it, but that is one show that will stay with me forever. Trailer is getting great response. अब आपका रिलीज के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है? What do you feel? यही एक्सपेक्टेशन है कि जितनी मेहनत से हमने बनाया है वो लोग उससे रिलेट कर पाएँ और लोगों को वो शो पसंद आए, सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे लगें. ये एक्सपेक्टेशन है. प्लीज़ वॉच द विसल ब्लोअर ऑन 16th ओनली ऑन सोनी लिव. ओके एंड अंकिता, इसके अलावा सिंस आपने डेली सोप किया है एंड रियलिटी शोज़ की अगर बात करो तो बिग बॉस करंटली चल रहा है, क्या कोई आपका वहाँ पे फ्रेंड है? मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखती हूँ. मतलब एक तो टाइम भी नहीं मिला है मुझे, बट आई हैवंट फॉलोड इट एट ऑल. ओके, आपके स्वाभिमान में जो फ्रेंड थे समृद्ध, ही इज डूइंग बालिका वधू, लाइक क्या वो टच में है आपके? जी ऑफ कोर्स, स्वाभिमान से सब टच में है बिकॉज आई थिंक एक फैमिली लाइक टीम बन गई थी हमारी. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ सच अ गुड शो. सेकेंड सीजन ऑफ इट आई गेस. मैंने भी कुछ देखा नहीं है, बट बेस्ट विशेस फॉर हिम. What is in pipeline next? When can we see you next? Okay, so this is an intentional call again because this is something I've really waited to do, a show like this. So the next whatever I take up, I want to first wait for this to come out and then take up something. All right. Any message for the viewers and the fans? यही कहूँगी, द विसल ब्लोअर एक शो है जो आपको सिर्फ एक मतलब एक सीरियसनेस है. ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड द मेडिकल फील्ड और कैसे क्या क्या होता है जब मेरिट को इम्पोर्टेंस ना देकर दूसरे एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस देकर लोग आगे आते हैं, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सोसाइटी. ऑफ कोर्स देयर इज अ सीरियस नोट टू इट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो. आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ शो. जी जी, आप मुझे डॉक्टर के अंदाज़ में देखेंगे, जो कि एक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इंटर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. जो भी उसे लगता है कि सही है उसके लिए वो खड़ी होती है और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वो डरेगी नहीं, खड़ी रहेगी जिस चीज़ के लिए उसे फील होता है कि ये सही है. और अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत हाई रिगार्ड रखती है अपने प्रोफेशन को लेकर. एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखा मैंने. आई थिंक इस शो के लिए हमने पार्ट्स में शूट किया क्योंकि बीच में कोविड का सेकेंड वेव, तो हाँ जी, तो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है पर मज़ेदार रही है. आई थिंक
जब चैलेंजेस के साथ आप अच्छा काम निकाल के दो तो उसका एक अलग मज़ा आता है. मुझे नहीं पता शो बाद में लोगों को कैसा लगेगा, बट एक जो एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन होती है वो बहुत हुई है प्रोसेस में. बहुत सीखा है मैंने. बढ़िया टीम थी, यही बोलूँगी. रियल लाइफ में ऐसे कभी अंकिता जी ने डॉक्टर बनने की सोची थी ऐसे, क्योंकि बचपन में हमारे ज़्यादा करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर. आई थिंक वो तब होता है जब हमें दो ही प्रोफेशंस पता होते हैं कि हाँ डॉक्टर टीचर तो बहुत सबका शौक होता है, बट नहीं, मैंने कभी डॉक्टर कभी नहीं सोचा. आई थिंक मुझे शायद डर लगता था वो सबसे. डॉक्टर तो मैंने कभी नहीं सोचा. टीचर मैं बहुत टीचर खेलती थी. सो आप बताइए कि बहुत सारे स्टार कास्ट है, लाइक कैसा रहा सबके साथ का एक्सपीरियंस विद फ्लावर के साथ? ढेर सारे स्टार कास्ट है. जी, बहुत अच्छा रहा. सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और अच्छा लगा उनके साथ काम करके. आई नहीं, एक्टर आपके ठीक वही बोल रही थी, बहुत बड़े एक्टर्स हैं इस शो में, तो बहुत कुछ सीखा स्पेशली इनसे. मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे. जैसे बहुत ही उम्दा कलाकार है अंकिता. ये आपको सिखा सकती है कि अच्छा मैं पूछना पड़ रहा है पूरा कलाकार. नहीं, वो मेरी हिंदी कमज़ोर है ना. देखा नहीं, आप इंग्लिश में भी बात. बहुत ही एक सिंपल तरीके से हर चीज़ को कैसे करते हैं, एक सिंपल अप्रोच कैसे रखते हैं, और एक काम हेडेड इंसान कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, सेट पे कैसे बिहेव करते हैं. मैं इतनी हर चीज़ नर्वस से- थी इस शो के लिए. मैं ये शेयर कर देती हूँ, मैंने अभी तक ये बात शेयर नहीं की कि मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ शूट पे रोने लग गई और हमारा कार में सीन था. और मुझे लगता है कि ऋत्विक मुझे ऑलमोस्ट लाइक ये डर गया होगा कि किसको. होने लगी है तो आई थिंक ना. हाँ जी. काफ़ी डरावना है, काफ़ी डरावना. आप ये सोचिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा कि आप एक एक्टर के साथ बैठ रहे हैं गाड़ी नहीं, में. हॉरर मतलब पूरी यूनिट के लिए तो हॉरर हो सकता है ना कि एक्टर होने लग गया डर के बाद. बट डर से ज़्यादा आई थिंक मैं बहुत ओवरवेल्म थी कि ये फाइनली शुरू हो रहा है. और मुझसे डरी हुई थी, मुझसे. प्लीज कम कंटिन्यू. ये बहुत इंटिमिडेटिंग है एज एन एक्टर. तो फिर मुझसे डरी हुई थी. सच बोलो. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड इज. अच्छा, अब मैं सच बोल रही हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी. ऋत्विक एक्चुअली बहुत ही गिविंग एक्टर है और बहुत सारे सीन्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर यू नो कुछ वो इनपुट मुझे दे देता था कि ऐसा कर ले. ये मत बोलिए, बोलेंगे बोलेंगे ये दूसरे एक्टर को बताता है क्या करना है. मैं ऐसा कुछ इनपुट नहीं देता. Sir, why are you so मैं scared? अपना काम करता No, हूँ no, बस. no. He's at जो हेल्प कर सकते हैं पूरे सीन को होने में. एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट ये था कि जहाँ जहाँ मेरे भी क्लोजेस थे, हमने कुछ इंटेंस सीन्स किए हैं काफ़ी, तो भी मतलब पूरा 100% डिलीवर किया है. कभी ऐसा नहीं लगा कि दिस इज़ नॉट हिज क्लोज और करूँ देखिए, यार आपको- इतना काफ़ी है. आपको एक बोलना है अंकिता के बारे में. देखिए, एक इंसान का बड़प्पन ना इसी एक बात से एक समझ में आ तारीफ जाती सुनी है. आपने अभी तक? एक भी कोई झूठी भी एक सुनी? इंसान का बड़प्पन ना इसी बात से समझ में आ जाती है जब आपको पता चलता है कि एक इंसान आपसे सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ज़्यादा काम कर चुका हो, बट एट द सेम टाइम एक इंटरव्यू में आके आपकी तारीफ कर रही है. यू नो, सो दिस इज एग्जैक्टली हु अंकिता इज. How am I senior? तुमने मुझसे ज़्यादा काम किया. कुछ भी मैं बोलूँ? क्या? नहीं. तो ओके ओके. बट वेरी ऑनेस्टली एक सेकंड, ये मेरा नहीं था. मेरा तुम्हारा था तुम ना. ज़्यादा फुटेज मत बढ़ाओ. तो शो में तो तुमने लिया है, टीजर में भी लिया है, अभी इसमें भी मतलब तुम बोल लो, देख रहे हो आप. तुम कर लो. कर लो, तुम बोलो. सो ऋत्विक, आप बताइए कि आप डॉक्टर लवर हैं. आप डॉक्टर लवर है. मैं काफ़ी डॉक्टर लवर. ओके. डॉक्टर्स लवर है. डॉक्टर्स लवर नहीं है. बट इन्हें टीचर लवर पसंद है. अच्छा, उस तरीके से डॉक्टर लवर अच्छा. है. मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ. हाँ, नहीं, इनको टीचर्स टीचर पसंद. बनना पड़ेगा, देन कुछ हो सकता है. हाँ, ये क्वेश्चंस कहीं और ही नहीं, हम मतलब. मजे लेने आए, ये और मजे लेने आए. हाँ, पर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा. टीचर पसंद है आपको? इनको टीचर पसंद. टीचर बन जाऊंगा. नहीं, टीचिंग वो का तो मेरे को बचपन से मुझे टीचर बनना पसंद था. अच्छा, एक इनको second. टीचर बनना है और मुझे टीचर पसंद है. हलो, हो गया, चलो. हाँ, डन, बस. पक्का जोड़ी बन गई. ओके, कमिंग बैक टू द विसल ब्लोअर. नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा लग रहा है इंटरव्यू. हाँ जी. जी, और कुछ? हाँ जी. आई थिंक अब तो बहुत मिल गया आपको. नहीं, आप कुछ शेयर कर रहे थे. मेरे को याद भी नहीं अब मैं कहाँ. हाँ क्या बातें कर रहे थे. सो हाँ, इतने सारे यही था ना जो वो. सारे स्टार. पर अभी वो चला गया, तो मैं सच ही बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत मज़ा आया. एंड ऋत्विक का मैंने शो देखा हुआ है पहले एज एन ऑडियंस,
आई थिंक वो उसी दौरान आया था जब मैंने अभी टीवी किया था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे OTT पे कुछ करना है, एंड हिज शो वाज वन ऑफ दोज शोज़ दैट इंस्पायर्ड मी। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके ऑपोजिट कास्ट हो जाऊंगी, पर बहुत मज़ा आया साथ में काम करके, बहुत अच्छे से हमने अपने सीन्स निभाए हैं, प्रोसेस में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको जब सब कुछ साथ में आएगा तो आपको देख के भी एज अ व्यूअर मज़ा आएगा। टीवी में तो आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है ना, अब इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर अब आप आ रहे हैं, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या फिर प्रेशर फील करते हैं कि यहाँ पे मैंने टीवी में भी ज़्यादा काम नहीं किया, अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ पे जी मैं बस सुन रहा हूँ कि मुझे पहले अंकिता जी का इंटरव्यू चाहिए। मैंने बोला ओके, मैं इंतजार Really? मेरा अरे नंबर वाह। कब आएगा, then, हाँ जी। बहुत मतलब शॉर्ट सा करियर रहा है अभी, हाँ, पर लेकिन जो किया है वो पसंद किया गया है, स्पेशली माई लास्ट शो ऑन टीवी। जिसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे OTT करना है, और वो डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है स्कैरी कि आपको कभी कभी पता नहीं होता जो डिसीजंस आप ले रहे हो आपके फॉर वर्क करेंगे अगेंस्ट, बट मैंने वो डिसीजन लिया, एंड फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा शो मेरी झोली में आया है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, मेरी इस झोली में आया है। और आई होप मैंने जस्टिस की हो अपने कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ। और आई होप जिन लोगों ने मुझे पहले देखा हुआ है वो ये देखें, और जिन्होंने नहीं भी देखा प्लीज़ देखिए। ये शो सिर्फ एक सीरियस मैटर के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, सो प्लीज़ वॉच इट ऑन 16 दिसंबर सोनी लिव। बिल्कुल लोग आपको देखेंगे एंड पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये ट्रू स्टोरी है, तो अगर आप बता सकें कि इसके बारे में, इससे पहले भी आपने कभी पढ़ा था, आपने लिखा था, पढ़ा था, या फिर क्या कुछ था जब आपको स्टोरी सुनाई गई, तो व्हाट्स योर रिएक्शन? जब मुझे स्टोरी सुनाई गई तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया कि ट्रू स्टोरी पर है, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन ओनली, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बोलूँगी, बेस्ड भी नहीं, क्योंकि और ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि किसी एक इंसिडेंट पर बना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं हमारे आसपास, और इन टर्म्स ऑफ फिक्शन उन्होंने इंस्पायर होके जो होता है एक शो बनाया है जिसमें दिखाया जाता है कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है जब मेरिट को इम्पोर्टेंस ना देकर, बाकी एलिमेंट्स को देकर किसी को मेडिकल करियर परस्यू करने दे दिया जाता है। इसके अलावा आप हमें 16 दिसंबर के अलावा कौन से अंदाज में हम आपको देखेंगे, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आप बताइए। अरे मैं तो हर प्रोजेक्ट में चाहूँगी मैं कुछ अलग करूँ। आई थिंक एज एन एक्टर आप यही चाहते हो, यही आपकी भूख होती है, बट फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके लिए एक्साइटेड हूँ, एंड आई थिंक मैं अपना कुछ भी अगला तब भी शुरू करना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ वंस दिस इज़ आउट, विच इज़ वेरी सून। 16 दिसंबर डेट आने वाली है, मिशन फ्लावर ऑडियंस को अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? 16 दिसंबर को पॉपकॉर्न बनाकर, ठीक है, टीवी ऑन करके सोनी लिव चलाकर बैठ जाना, और पूरा शो ट्रस्ट में आप बिंज वॉच कर लोगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू।